إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹیج پر جلوہ افروز معزز مہمان کرام، حاضرین محفل، آج کے اس پروکار جذبات سے لبریز الوداعی تقریب کے صدر کے انتخاب کے لیے میں حاضر ہوا ہوں. آج کی اس تقریب کی صدارت کے لیے میں جس شخصیت کا اسم گرامی پیش کرنا چاہتا ہوں وہ نہ صرف علم و دانش اور عملی قابلیت کے چراغ روشن کیے، وہ پیکر علم و فن، رونق انجمن، افتخار سخن میری مراد محترم ڈاکٹر اشفاق انجم صاحب سے ہے. میں ان کا نام آج کے پروگرام کی صدارت کے لیے پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میرا کوئی ساتھی اس کی پرزور الفاظ میں تائید کرے. شکریہ. میری زندگی کا مقصد ہر ایک کو فیض پہنچے، میری زندگی کا مقصد ہر ایک کو فیض پہنچے. میں چراغ راہ گزر ہوں، مجھے شوق سے جلاؤ. جس عظیم شخصیت کے پیش نظر میں نے مصروں کو کہا ہے، آج ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ آج ہماری محفل کا نہ صرف حصہ ہے بلکہ آج کی اس پروکار تقریب کی صدارت فرما رہے ہیں. میری مراد محترم ڈاکٹر اشفاق انجم سے ہے. میں اپنی جانب سے اور حاضرین محفل کی جانب سے اس کی پرزور الفاظ میں تائید کرتا ہوں اور صدر موصوف سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھانے کی اجازت مرحمت کریں. خدائی ہے تیرے ہی واسطے بڑھائی ہے. صدر محفل محترم ڈاکٹر اشفاق انجم صاحب کہ رکھ دیا ہاتھ کس نے میرے ہاتھ میں، میں ولی ہو گیا ایک ہی رات میں. پروفیسر مجید صدیقی صاحب، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ہاں جب ہائی اسکول میں جب میرا اپائنٹمنٹ ہوا اور میں جونیئر کالج انچارج جو ہے محترم بلند اقبال صاحب نے یہ جونیئر کالج انچارج بنایا اور شان ہند میڈم ساتھیہ میڈم مستقیم ڈپٹی صاحب نے یہ ہیڈ ماسٹر بنایا. تو یہ بہت سارے احسانات ہیں. سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ صلاحیتیں عطا کی. اللہ تعالیٰ کے بعد میرے ماں باپ ہیں، میرے بھائی بہن ہیں اور تمامی رشتہ دار ہیں. خاص طور پر شگفتہ ہے، ان کے والد ماتا سید پرویز صاحب ہیں اور اتنے سارے لوگوں کا احسان، اتنے سارے لوگوں کے احسانات ہیں کہ میں نے کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب لکھی ہے، اس میں نے ڈیٹیل سے تمام باتیں لکھی کہ ہمارے جو خاندان کی سرپرستی جو ہے محمد رضا سر کر رہے ہیں، شروع سے کرتے آ رہے ہیں. میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں. آج اتنا بڑا پروگرام کا انعقاد کیا گیا جمہور آسمان جونیئر کالج میں، یہ آپ لوگوں کی، یہ ہمارے اساتذہ کرام کی محنت کا نتیجہ ہے. اور جیسا کہ ایک بات میں اظہار کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے تعلق سے بہت ساری باتیں ہوئی. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، مولانا شیخ جمالی نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بہت زیادہ اوبیڈینٹ لوگ نہیں تھے لیکن انہوں نے پر کنٹرول کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جس آدمی کے اندر جو صلاحیتیں رہتی تھیں اس کو اس صلاحیت کے مطابق اس کو کام دیا کرتے تھے. ایک صحابی آئے، وہ بولنے لگے مجھے گورنر بنائیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، آپ ہمیشہ غریب، غربت آپ نے دیکھی، آپ غریب رہے ہمیشہ، آپ گورنر کے پوسٹ کے لیے آئے ہی نہیں ہو سکتے. میں نے یہاں پر جو میرے تعلق کی باتیں ہو رہی ہے کہ میں نے بہت
डेमोन्स्ट्रेशन अच्छा किया, तो मैं ये कहता हूँ कि मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है, और यही काबिलियत ही मेरी काबिलियत है। मेरे अंदर किसी काबिलियत का ना होना ही मेरी काबिलियत है। अब आप बोलेंगे ये कौन सी बात हुई? बात ये हुई कि अगर मुझे क्लिनिकल काम करना है, कोई मराठी काम कर रहा है, मैं सैयद सुल्तान को बोलूंगा, माजिद सर को बोलूंगा, सलाम सर को बोलूंगा, हमारे जाहिद भाई को बोलूंगा। अब मुझे कहीं अच्छे राइटिंग की जरूरत है, हमारा ड्राइंग टीचर है। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन की बातें हैं तो हमारे नबी सर है, शाहिद सर है, इजाज सर है, अशफाक कुरैशी सर है। कहने मतलब ये कि मुझे जहाँ जहाँ जो जरूरतें पेश आती थी, हर काम मैं अपने हाथ से नहीं कर देता, बल्कि जो आला क्वालिटी के हमारे टीचर हैं, मैं जब उनको काम देता हूँ तो उनको एक एहसास होता है कि मेरी काबिलियत के मुताबिक मुझे काम मिला, और उसको बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए वो दिल जान से एक कर देते हैं। और वाकई स्कूल में बहुत ज्यादा उनकी, खास तौर पर मेरे स्टाफ जो है, इतने बड़े स्टाफ को लेकर चलना, और हालात इतने खराब हैं, मैनेजमेंट के जहाँ ढगले होते हैं तो वो हेडमास्टर को किसी सूरत से चलने देते नहीं। एक तरफ आज पहले हेडमास्टर है, सामने 100 टीचर है, 100 टीचर अगर धक्का एक दीवार को देंगे, तरफ एक आदमी धक्का देगा, कितना मुश्किल हो जाता है जीना। लेकिन ऐसे हालात में भी मैनेजमेंट ने भरपूर साथ दिया। शान-ए-हिंद मैडम जो है, उनकी हिकमत अमली मैं समझता हूँ कि बेइंतहा शान-ए-हिंद की मैडम की हिकमत अमली हो, और साधना मैडम और वो सेकेंड डिवीजन साहब, ये 2-3 लोग मिलकर स्कूल को बेइंतहा तरक्की की राह पर ले जाने के लिए कोशा है। और मैंने जो उसके साथ जो है शाहिद फाइन साहब जो हैं, उन्होंने इनको मेरे साथ लगा दिया, और उनकी मदद से मैं स्कूल को तरक्की देता रहा। मैं थोड़ा सा बहुत ज्यादा बातें नहीं कहूँगा, 2 बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हेडमास्टर बनने के बाद जो है कभी बहुत सारी गलत बातें आपको लगती हैं हमारे स्टाफ के लोगों को। बात तो आपको बताऊं मैं कि कभी कभी हेडमास्टर जो अपने आप को पीछे करते हैं, कभी कभी आपको पीछे होना पड़ता है। एक ओलंपिक चैंपियन अगर बाप है और पहली दूसरी जमात का बच्चा, अगर दोनों में रनिंग की शर्त लगेगी, कौन जीतेगा बताइए? बाप भी दौड़ रहा है, रनिंग कर रहा है, बेटा भी दौड़ रहा है, तो रनिंग में कौन जीतेगा? बेटा जीतता है। ओलंपिक चैंपियन जो है बाप कभी नहीं जीतेगा बेटे से। तो कभी कभी हम ऐसी हरकत करते हैं, और कभी कभी हमारी बातें या मैनेजमेंट की बातें हमको खराब लगती हैं। तो जिंदगी में ऐसा भी होता है कि जो चीज खराब होती है वो अच्छी होती है। मिसाल के तौर पर एक चिड़िया आसमान में उड़ रही थी, और ठंड की वजह से बिल्कुल मुर्दा हो गई, और आसमान में उतर उतर गिर जाती है, नीचे गिरती है तो गोबर भी गिरती है। गोबर बिल्कुल ताजा होता है, गर्म होता है, और जब गोबर में वो चिड़िया गिरती है तो उसकी जान में जान आ जाती है। एक शरीफ आदमी जो आता है, गोबर में से चिड़िया निकालता है और उसको धो धा के घर ले जाता है, उसको काट के खा जाता है। तो आप बताइए कि उसके लिए गोबर मतलब अच्छा साबित हो रहा है कि वो शरीफ आदमी जो उसको धो के साफ कर रहा है, बहुत ज्यादा ये कर रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से हमको लगता है कि ये तो हमारे खिलाफ चल रहे हैं। ऐसा होता नहीं है। मैंने हर तरीके से कोशिश की, हर तरीके से मुझे जितना ताउन मिला, अकेला आदमी कोई स्कूल चला नहीं सकता, जितना ज्यादा हमारी स्टाफ के लोगों ने, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, नाम अगर मैं एक कर लूंगा किसी का दे लूंगा तो कोई मसला है। 100 टीचर है और उसमें आफाकियत खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप जो है हमारे जो मेहमानाने कराम है वो हमारे असातिज़ा के नाम, कलरकों के नाम नहीं जानते हैं। उसमें आप भी बोर होंगे और 2-4 नाम छूटे। मैं तमाम ही लोगों का तहे दिल से मशकूर हूँ, बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना ये खिदमत का मौका दिया। खासतौर पर मैनेजमेंट जो है, ये साजिदा मैडम साहिबा हैं, शान-ए-हिंद है, मुस्तकीम डिग्री साहब है, शाहिद फाइन साहब है, मैं इनका बेहद मशकूर हूँ। और जो लोग मेरे खिलाफ चल रहे हैं, कदम कदम पर जिन लोगों ने मुझे तकलीफें दी हैं, तो मैं तो उनके लिए यही दुआ मांगूंगा जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर मांगी थी कि खुदाया इन्हें माफ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। शुक्रिया। आज की इस अज़ीमुश्शान अबूदाई तकरीब रस्म इजरा शनासनामा जमहूर, इन दोनों प्रोग्राम के सदर मोहतरम जनाब डॉक्टर अशफाक अंजुम सर साहब, मैं ये मानता हूँ और इस बात को मैं जानता भी हूँ कि जितने असातिज़ा कराम उर्दू पर्शियन से ग्रेजुएशन किए हुए हो, यकीनन अशफाक अंजुम सर के शागिर्द हैं।
اس مالیگاؤں شہر میں آپ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ رہے ہیں مرسی کالج میں، اشفاق انجم سر صاحب، شہر عزیز سے آئے ہوئے معزز مہمانان کرام، اسکول انتظامیہ کے ذمہ داران، ٹیچنگ و نان ٹیچنگ اسٹاف جموں ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج و ایڈمنسٹریٹو اسٹاف چراغ پوری پرائمری اسکول، آج ہمارے اسکول سے 4 اسٹاف ممبران سبکدوش ہو رہے ہیں۔ ہمارے اسکول کی یہ شاندار روایت رہی ہے کہ ہم ہمارے اسٹاف ممبران کو عزت و وقار کے ساتھ الوداع کہتے ہیں۔ اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ہم نے آج الوداعیہ تقریب کا انعقاد کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر احمد ایوبی سر کی کتاب شناس نامہ جمہور کا بھی اجرا کیا جائے گا۔ ان دونوں مقاصد کے تحت آج کا یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ میں اپنی جانب سے سبکدوش ہونے والے اسٹاف ممبران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے نیک خواہش کا اظہار کرتا ہوں۔ شناس نامہ جمہور اس کتاب پر ڈاکٹر احمد ایوبی سر کو بھی دل کے عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آخر میں امتیاز احمد منظور احمد پیون بھیا کے لیے دعائیں خیر کرتا ہوں، اور اپنی بات کو ان 4 مصروں کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ الوداع پیکر علم من، الوداع الوداع افتخار سکن، الوداع الوداع رونق انجمن، الوداع الوداع رنگ و نور و چمن، الوداع۔ شکریہ۔ صفات نامہ۔ بہترین مشیر، دل سمجھتا ہے تیری آواز کو۔ الحمدللہ ہر پرنسپل کا بھروسہ، پیسوں کا ایماندارانہ حساب رکھنے والے، ایک مخلص انسان جو اپنے بہترین مشوروں سے سب کی مدد کرنے والے بہترین مشیر آج اس عظیم الشان تقریر میں جلوہ گر ہے۔ چوڑی پیشانی اقبال مندی کی نشانی، زباں و بیاں بڑی پیاری، چہرے پر داڑھی چہرے کو کرتی نورانی، کھڑی ناک عیب سے پاک، آنکھوں پر چشمے کی پاسبانی، مگر نازک موقعوں پر نظر کی حیرانی، ہونٹوں پر شفقت بھری لالی، دل مکر و فریب سے خالی، طویل قد اونچی سوچ کی دلیل، باتیں عاقلانہ، کسی کام کو انجام دینے میں عاجلانہ، اپنے خاندان کی شان، بھائیوں اور بہنوں میں فخر کی نشانی تو بچوں کی جان، ایک بہترین صنعتکار، دوستوں کے دوست، ایک اچھے انسان، شرٹ پینٹ اور کرتے پاجامے میں نظر آتے ہیں، اپنی سادگی اور متانت سے سب پچھا جاتے ہیں۔ اس مقناطیسی شخصیت کے مالک کو حاجی محمد الیاس محفوظ الرحمان کہتے ہیں۔ محبت میں جو ڈوبا ہو اسے ساحل سے کیا لینا، محبت میں جو ڈوبا ہو اسے ساحل سے کیا لینا، کسے اس بحر میں جاتا کنارہ یاد رہتا ہے۔ 1993 میں لیب اٹینڈنٹ فزکس کے طور پر جمہور ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج سے منسلک ہوئے، تقریباً 33 سالوں سے اس چمن کی آبیاری کر رہے ہیں۔ لیب اٹینڈنٹ ہوتے ہوئے بھی آپ فلاحی کاموں، دیگر سرگرمیوں میں حصہ لیتے رہے۔ آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سائنس ایگزیبیشن میں پہلا انعام حاصل کیا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے کئی انعامات حاصل کیے اور ڈویژنل لیول تک پذیرائی حاصل کی۔ بورڈ ایگزام ہو یا انٹرنل ایگزام، اسٹیشنری کا کام بھی آپ نے بحسن خوبی انجام دیا۔ گزشتہ 15 سالوں سے آپ مسلسل جونیئر کالج کے طلبہ کا GR جنرل رجسٹر ترتیب دیتے آ رہے ہیں۔ کرو گے یاد باتیں تو کہو گے، کرو گے یاد باتیں تو کہو گے، تو کوئی رکھتا ہے بس یار وہ تھا۔ آج جمہور ہائی اسکول کا ذرہ ذرہ آپ کی خدمات کا اعتراف کرتا ہے، اور یہاں
का एक एक शख्स आपको नम आंखों से अलविदा कह रहा है। मैं जानता हूँ मेरे बाद खूब रोएगा, मैं जानता हूँ मेरे बाद खूब रोएगा। रवाना कर तो रहा हूँ वो हंसते हंसते मुझे आज की इस तकरीर में जनाब हाजी मोहम्मद इलियास साहब की जुमला की बात का इतराफ़ करते हुए उन्हें सिपाहनामा से सरफराज किया जाता है, इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सेहत के साथ साथ तवील उम्र अता फरमाए। मोरबा 30 अप्रैल 2025 प्रिंसिपल और स्टाफ जमूर हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज अदारे अंजुमन तालीम जमूर की जानिब से जनाब हाजी मोहम्मद इलियास महफूज रहमान को उनकी खिदमात का इतराफ़ करते हुए अलविदाई तकरीर में यह सिपाहनामा दिया गया। तहरीर करदा आसिफ हुसैन मेहदी हसन, पेश करदा सदर अराकीन अंजुमन तालीम जमूर, प्रिंसिपल और स्टाफ नॉन टीचिंग स्टाफ जमूर हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लइन ज़करतुम लाज़िदन्नकुम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम मेहमानान किराम और स्कूल के स्टाफ के मेंबरान, इस स्कूल में आज मेरा शायद आखिरी दिन है। अपनी तवील यानी 35 बरस सर्विस के बाद यहाँ से सुबकदोश हो रहा हूँ। इस दौरान मुझे स्टाफ का ताउन मिला, इज्जत मिली, इस पर मैं तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। गुज़िश्ता 30 बरस कबल जब मैं गौर करता हूँ तो स्टाफ के रवैये में और इंतजामिया के तरीक़ेकार में काफ़ी तब्दीली पाता हूँ। सबसे पहले ये कि इस वक्त मैंने देखा कि स्टाफ के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक बदरजे अतम मौजूद था, लेकिन अभी इसमें थोड़ा कमी आ गई है। और इसी तरह से मुझे इस बात पर भी बेहद खुशी है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी ये 35 बरस की सर्विस बेदाग रही। न कभी किसी हेडमास्टर ने मुझे मेमू दिया और न कभी किसी हेडमास्टर ने मुझे सर्जनिस किया। आज इस खुशी के मौके पर मैं अपने आप को बेइंतहा मुतमईन पाता हूँ। मैं हमारी इंतजामिया का और इस हेडमास्टर स्टाफ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने दौरान सर्विस मेरा ताउन किया, मेरा हौसला बढ़ाया। खुदा से दुआ है कि आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं गुजारिश करूंगा कि मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिए और अगर इस दौरान मेरी जानिब से किसी के साथ या किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो मैं माफ़ी का खासगुजार हूँ। अक्सर एजाज सिद्दीकी सरमाइक पर सुनाते हैं, मैं उसी शेर से अपनी बात खत्म करूंगा कि हम तो चले याराने में भी सारे काम तमाम हुए, हम तो चले याराने में भी सारे काम तमाम हुए, जैसे कोई परिंदा अपने घर को लौटे शाम हुए। खुदा हाफिज़। इस तकरीब के सदर मोहतरम, अंजुमन के सदर मौसूफा और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन शहर, आइए जनाब अल्ताफ़ फारूक सर पर मैं सिपाहनामा की ख़वानदगी कर रहा हूँ। समाअत फरमाएं। बाखिदमत जनाब अल्ताफ़ फारूक सर, आपकी सादा मिजाजी को सलाम। दर्स व तदरीस सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मुश्कबार राह है जिसकी खुशबू से हर कोई मुअत्तर और मुजल्ला हो जाता है। मौसूफ ने इसी राह मुअत्तर के मुसाफिर बनकर न सिर्फ अपने आप को मुनज़्ज़र किया बल्कि तलबा समेत असातिज़ा को भी मुनव्वर किया। हम इस बात के लिए आपके शुक्रगुजार हैं। मुकर्रमी, आपकी पैदाइश शहर मालेगांव के एक मेहनत कश घराने में हुई। इब्तिदाई तालीम मोहल्ला बैजबाग के प्राइमरी स्कूल से शुरू हुई। ग्रेजुएशन नासिक से और बीएड औरंगाबाद से मुकम्मल किया। दर्स व तदरीस से जुनून की हद तक लगाव था। यही वजह है कि तदरीस के पेशे से वाबस्ता होने के लिए पनवेल की याकूब बेग हाई स्कूल से दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू किया। चंद सालों के बाद आपकी तकदीर का सितारा चमका और जमूर हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की इंतजामिया की नज़र आपकी सलाहियतों पर पड़ी और स्कूल हाजा में तकर्रुरी हुई। इस तरह वतन की रोजी मुयस्सर आई। काम के लिए आपकी लगन और इंतजामी सलाहियतों को देखते हुए असिस्टेंट हेडमास्टर के ओहदे से सरफराज किया गया। मौसूफ ने तफवीज़ की गई जिम्मेदारियों को बहुस्न खूबी अंजाम दिया। हम इस बात के लिए आपके ममनून हैं। मुकर्रमी, यकीनन आप न सिर्फ वज़ात खुद तालीम और ताल्लुम से जुड़े रहे
بلکہ اپنے فرزندان کو بھی اعلیٰ تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیا۔ نتیجتاً آپ کے فرزندان محمد کاشف، محمد توصیف، محمد عاطف اور محمد یوسف برسر روزگار ہیں۔ آج وہ بھی آپ کے انتہائی مشہور ہیں۔ محترم، ہم اس بات کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں کہ جمہور ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج میں آپ اپنے فرائض خواہ معاون مدرس کے ہوں یا صدر مدرس کے بہت سے خوبی انجام دیے۔ آپ نے جمہور کیمپس میں فرائض اشجار کے وہ شاخ نمو کی جس کی محنت ہمیشہ قائم رہے گی۔ وقت کی پابندی آپ میں بدرجہ ختم موجود ہے۔ مواقع کی مناسبت سے برجستہ اشعار کہنا اور محفل کو مسحور کر دینا آپ کا خاصہ رہا ہے۔ اسکول کی تعمیر و ترقی میں آپ نے جس قدر دلچسپی لے کر مسائل حل کیے، یہ ہمارے لیے مشہد راہ ہے۔ تعلیمی امور ہو یا آفس کے کام، اپنے شب روز ایک کر دینا یہ بھی آپ کی خاصیت رہی ہے۔ اساتذہ کے انفرادی مسائل کو حل کرنا یہ نہ صرف اپنی اہم ذمہ داری سمجھی، بلکہ انہیں خود کا مسئلہ سمجھتے ہوئے اسے بخوبی حل کرتے رہے۔ یہاں تک کہ اساتذہ کے مسائل صدر مدرس کو انتظامیہ حل کرانے میں اہم کڑی ہوا کرتے تھے۔ ہم اس بات کے بھی انتہائی شکر گزار ہیں۔ محترم، آپ کی شخصیت مثالی نائب صدر مدرس بن کر روز روشن کی طرح عیاں رہے گی۔ محترم و معظم، آپ فضلہ سنج عالی ضرب سورہ کل کے حامی ہیں۔ درد والا صفات سے آپ کی شخصیت مسحور کن شخصیت ہے اور یہ خوبیاں اساتذہ سمیت طلبہ کے دلوں کو تڑپاتی رہیں گی۔ محترم و مکرم، اب جب کہ آپ دیال علم و ادب سے گفتگوش ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ تمام آفات سے محفوظ رکھتے ہوئے صحت و تندرستی کے ساتھ عمر دراز عطا کرے اور تا حیات شادہ و فرحہ رکھے، آمین۔ یہ سباس نامہ 30 اپریل 2025 عیسوی کو علیحدہ تقریب میں پیش کیا جا رہا ہے۔ من جانب صدر و اراکین انجمن تعلیم جمہور، ٹیچنگ پرنسپل اسٹاف، ٹیچنگ اینڈ ٹیچنگ اسٹاف، جمہور ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج مالیگاؤں، شکریہ۔ والصلاة والسلام علی سید المرسلین واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدر مجلس انجمن طالب جمہور کے صدر اراکین، جمہور ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج کے پرنسپل احمد ایوبی سر، جمہور ہائی اسکول کا پورا اسٹاف، چراغ پوری پرائمری کا اسٹاف اور ہیڈ مسٹریس، معزز مہمانان کرام، شہر عزیز سے آئی ہوئی معزز شخصیات، صاحب اعزاز الیاس بھائی احمد ایوبی سر، اور ہمارے ایک ساتھی جو اس دار فانی سے رخصت ہوئے، امتیاز پیون بھیا، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ آج کی اس الوداعی تقریب کے موقع پر میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے نہ صرف درس و تدریس کے پیشے سے منسلک کیا، بلکہ میری اپنی فرائض کی ادائیگی میں بھی اللہ کی بڑی مدد شامل حال رہی۔ میں انتظامیہ کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ 2005 میں انہوں نے مجھے معاون صدر مدرس کی ذمہ داری سونپی۔ نہ صرف وہ ذمہ داری تھی بلکہ انہوں نے میری حوصلہ افزائی بھی کی۔ اسی طرح سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے احمد ایوبی سر کا کہ جنہوں نے پینشن کے کاغذات کی تکمیل میں اپنا دست تعاون دراز کیا۔ میں انہیں ان کی طویل تدریسی خدمات پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آئندہ کی زندگی کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کرتا ہوں۔ اسی طرح سے ہمارے الیاس بھیا لیب اسسٹنٹ، ان کی بھی طویل خدمات اس ادارے میں رہی ہے، میں انہیں بھی مبارکباد دیتا ہوں اور آنے والی زندگی کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کرتا ہوں۔ تقریباً
20 साल तक मैं असिस्टेंट हेड मास्टर रहा। इस दौरान मैंने अपने स्टाफ को बहुत करीब से देखा। मैंने इनके लेसन ऑब्जर्व किए और लेसन ऑब्जर्व करने के दौरान मैंने इनके अंदर बेहतरीन सलाहियत पाई। अल्लाह ताला ने इन्हें दर्स व तदरीस का फन अता किया है, इनके अंदर बेहतरीन सलाहियत है। मैं इनसे एक दरखास्त करूंगा कि अब ये लोग कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ें और कुरान पाक का तर्जुमा अपने दर्स व तदरीस के मामले में इस्तेमाल करें। आप जब भी पढ़ाएंगे तो यकीनन कोई ना कोई बात कुरान पाक में उस ताल्लुक से मौजूद रहेगी। मिसाल के तौर पर अगर आप हम्द पढ़ा रहे हैं, तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी जमीन बनाई, क्या आसमां बनाया, आप इसका हवाला बच्चों को कुरान पाक की सूरह गासिया से दे सकते हैं। आप बताइए बच्चों को, बच्चे बड़े संजीदा होते हैं, आपकी बातों का असर रखते हैं, आपकी बातों को वो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। सूरह गासिया में बताया गया है, अल्लाह ने तारीफ की है, अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफा खुलिकत, क्या तुमने नहीं देखा कि मैंने ऊंट को कितना कारआमद जानवर बनाया। वैल समाई कैफा रुफियत, कि आसमान को मैंने कैसी बुलंदी अता की। वैल जिबाली कैफा नुसिबत, कि मैंने पहाड़ों को कैसे नस्ब किया। वैल अर्द कैफा सुतिहत, कि जमीन को मैंने कैसे फैलाया। इसी तरह से जब आप निज़ाम शमसी का सबक दे रहे हैं, दिन और रात कैसे बनते हैं, जमीन की महरी गर्दिश और मदारी गर्दिश, इसका हवाला भी कुरान पाक में आज से 1450 साल पहले दिया जा चुका है। आप बच्चों को ये बावर करा सकते हैं कि देखिए आज की साइंस की दुनिया तो हमें निज़ाम शमसी का निज़ाम पढ़ा रही है, लेकिन इस बात की इत्तला हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1450 साल पहले कुरान के जरिए से दी है। सूरह उस आयत को आप बाकायदा बच्चों के सामने पेश कीजिए। वहुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन नहार वश्शम्स वल कमर कुल्लुन फी फलकी यस्बहून, क्या तुमने नहीं देखा कि हमने दिन और रात को बनाया, चांद और सूरज को बनाया और हर एक अपने दायरे में तैर रहा है। आज निज़ाम शमसी का उसूल यही है। आज बड़े बड़े साइंटिस्ट इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि ये कैसी किताब है कि जिसकी इत्तला हमें 1450 साल पहले मिली। मुझे उम्मीद है आप अपनी बेहतरीन सलाहियतों का इस्तेमाल करके इंशाअल्लाह बच्चों की तालीम और तरबियत में पूरी कोशिश करेंगे। मुझे इकबाल का शेर याद आता है कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्त मीरा से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्त मीरा से, जरा दम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़र्क़ जैसा भी। आपके साथ मेरा एक लंबा सफर रहा। इस तालीमी सफर में आपकी मोहब्बत, आपकी रिफाकत, आपकी हौसला अफजाई मेरे साथ रही। मैं अब अपनी मंजिल मकसूद पर उतर चुका हूँ कामयाबी के साथ, और इस कामयाबी का सहरा आप लोगों के सर जाता है। लिहाजा मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, आप लोगों के लिए आइंदा की सर्विस के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार करता हूँ। इसी तरह से हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ भी बहुत फ़ाल है, हर काम बहुत अच्छे ढंग से करता है। ऑनलाइन काम हो या ऑफिस में जाकर काम करने का कोई मामला हो, बड़े अच्छे अंदाज से वो करते हैं। मैं हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ को भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनके लिए भी नए ख्वाहिशात का इज़हार करता हूँ। हमारे ये तालिबान इल्म जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, ये अकेले नहीं बैठे, बल्कि अपनी आंखों में अनगिनत तरक्की के ख्वाब सजाए बैठे हैं। अजीज तलबा और तालिबात, तालीमी सफर में
حصول علم کے لیے آپ سنجیدگی اور متانت کے ساتھ محنت کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں۔ اسماعیل ملٹی نے آپ کے لیے کہا ہے کہ بے کوشش و بے جہد ثمر کس کو ملا ہے، بے گوت زنی گنج گوہر کس کو ملا ہے، بے خون پیے لطف میں در کس کو ملا ہے، بے جور کشی تاج ظفر کس کو ملا ہے، بے خاک کے چھانے ہوئے زر کس کو ملا ہے، بے کامش جاہی محنت کس کو ملا ہے۔ جو رتبہ والا کے سزاوار ہوئے ہیں وہ پہلے مصیبت کے طلبگار ہوئے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، میری نیک خواہشات آپ لوگوں کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا مستقبل روشن اور کامیاب بنائے، آپ کو علم نافع عطا فرمائے، آپ کو صحیح سوجھ بوجھ اور صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ میں اب حاضرین محفل کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آج آپ لوگوں نے ہمارے اعزاز میں یہاں حاضری دی، قیمتی وقت دیا، اپنی تمام تر مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر ہماری حوصلہ افزائی کی، اس کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ قمر اقبال کی سلاسی مجھے یاد آتی ہے کہ روشنی کون کس کو دیتا ہے، روشنی کون کس کو دیتا ہے، شام ہوتی ہے جب سورج بھی اپنی کرنیں سمیٹ لیتا ہے۔ میں آخر میں دعا گو ہوں اس ادارے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اسی طرح سے ہمارے اسٹاف کے مسائل کو بھی اللہ تعالیٰ حل فرمائے اور ہمارے بچوں کو علم نافع عطا فرمائے۔ بہت دیکھیے ابھی حکم دے کر کے ان کا استقبال کریں۔ محترم صدر صاحب، شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے نام، جس نے قلم کے ذریعے ہمیں تعلیم دی۔ تعزیتی سپاس نامہ برائے مرحوم امتیاز احمد منظور احمد سابق پیون جمہور ہائی اسکول مانے۔ ہم نہایت ہی رنج و عالم کے ساتھ تعزیتی پیغام پیش کرتے ہیں کہ ہماری اپنی جمہور ہائی اسکول کے محنتی باوفا سادہ مزاج سابق پیون مرحوم امتیاز احمد منظور احمد، جنہوں نے گزشتہ کم و بیش 30 سال تک اپنی بے لوث خدمات سے جمہور ہائی اسکول مالیگاؤں کو سنوارا، وہ کہ اب ہمارے درمیان نہیں رہے، لیکن وہ اب بھی ہمارے دلوں میں زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے۔ رب کریم ان کی بار بار مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام سرفراز فرمائے، آمین ثم آمین۔ کڑے سفر کا تھکا مسافر تھکا ہے ایسا کہ سو گیا ہے، خود اپنی آنکھیں تو بند کر دی، ہر ایک آنکھ لیکن بھگو گیا ہے، اور میں نے روکا تو تھا وہ چلا ہی گیا، میں نے روکا تو تھا وہ چلا ہی گیا، بے بسی دور تک دیکھتی رہ گئی، میں نے روکا تو تھا وہ چلا ہی گیا، بے بسی دور تک دیکھتی رہ گئی۔ مجھ کو یہ پورا شتاب نامہ نہیں پڑھنے کو بولا گیا کیونکہ یہ بہت لمبا ہے، اس لیے میں اب 2 شارٹ کر کے یہ یاد نہیں سب میں، اور اس کو میں جمہور ہائی اسکول کے مینجمنٹ اور اسٹاف کی جانب سے میں پیش کر رہا تھا۔ الیاس کی بات تو الیاس میرے پہلے سے یہاں پر تھا، وہ شاید 1990 میں یہاں پر اس کا اپوائنٹمنٹ نہیں ہوا تھا۔ الیاس کے پروموشن کے بعد جو جگہ خالی ہوئی تھی اس میں ہم لوگ 3 لوگ آئے تھے، 3 لوگ کا پروموشن ہوا تھا، الیاس، منظور اور یوسف۔ منظور کا جو انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ الیاس اور منظور اور یوسف صاحب کا جب پروموشن ہوا تو وہ تینوں کی جگہ جو خالی ہوئی تھی وہ 3 جگہ جب بھری گئی تو اس میں عتیق، میں اور اکاؤ رہنا، ہم لوگ تینوں کا اپوائنٹمنٹ ہوا۔ الیاس بہت سیدھا آدمی، بہت سادہ آدمی تھا، کبھی بھی کسی سے کوئی
उसका यानी क्लैश नहीं रहा। कभी कोई ऐसी बात नहीं बोलते रहे यार उतना हो गई यहाँ चलना, ऐसा आदमी है ये। अल्लाह ताला जो है उसकी बाकी ज़िंदगी सेहत वाफियत से गुजार दे। रह गई इम्तियाज़ की बात, तो इम्तियाज़ मेरे बाद 1-1-19 में 93 का मेरा पॉइंट है, इम्तियाज़ का 1-1-95 का था। इम्तियाज़ मेरा साड़ू भी था, मेरी बड़ी साली उसके साथ ही, उससे मेरा बहुत रिश्ता भी था और स्कूल में साथ ही सब में उससे बहुत कुछ यानी ऐसा लेन देन हुई। कभी घर पे जैसे बहुत से हमारे मेरे तो बहुत ताल्लुका थे, उसका इंतकाल हुआ तो बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह ताला उसको और उसको जन्नतुल फिरदौस से आज़म का फरमाएं और उनके जो भी है बच्चे और बच्चियाँ उनको सब जन्नत फरमाएं। इतना ही करके मैं अपना बोलने को खत्म करता हूँ। सदर मोहतरम डॉक्टर अशफाक अंजुम साहब, दीगर मेहमानान मुअज़्ज़म और सामने तशरीफ़ फरमा शहरियान अज़ीज़, जिस महफिल के सदर डॉक्टर अशफाक अंजुम हो और जिस मजलिस में रफ़ीक शेख साहब, मोहम्मद रज़ा सर, इस तरफ इनामुर रहमान सर, ऐसी शख्सियात मौजूद और उसमें अपना किसी चीज़ को पेश करना, मैं समझता हूँ कि ये कारमानी दारस है। थोड़ा सा घबराहट है, लेकिन उसके बाद भी मैं उस्तादुल असाज़ा के सामने बहरहाल मैं ये सिपाहनामा पेश करने की जुर्रत कर रहा हूँ, बगौर समाअत करें। मैंने महसूस किया कि अहमद अयूबी सर जब भी ऐसे महफिल में बैठा करते थे तो उनके दिलो दिमाग पर उनकी मोहतरमा हावी रहा करती थी और नाम लिया करते थे, आज शगुफ्ता ने ये कहा, आज उसने ये कहा, तो मैंने इसका उन्वान ही रख दिया शगुफ्ता मिजाज मुअल्लिम, ताकि इसमें भी वो उनसे जुदा ना होने पाए। मोहतरम डॉक्टर अहमद अयूबी मोहम्मद अयूब सर की खिदमत में ये सिपाहनामा पेश करते हुए हम तमामियत कल्ब महसूस करते हैं कि मौसूफ की शख्सियत एक हमागीर शख्सियत है। आपने अपने आप को सिर्फ तालीम और ताल्लुम तक ही महदूद नहीं रखा, समाज में मुख्तलिफ सोसाइटीज के सरपरस्त और निगरां के तौर पर भी बहुत से काम को अंजाम दिया है। इल्म सरदार बीएड कॉलेज में लेक्चररशिप से लेकर सरदार बीएड कॉलेज से होते हुए जमहूर हाई स्कूल तक आपकी तदरीस का 33 साल मुकम्मल हुआ और आपने हर जगह अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया है। दौरान तदरीस 12वीं जमात के तलबा तलबात के लिए गाइड को तरतीब देकर भी आपने हजारों लोगों के निसाब को समझने में आसानियां पैदा की। जमहूर में आपकी तकर्रुर के वक्त से ही तालिबान इल्म में निसाबी सरगर्मियों के साथ गैर निसाबी सरगर्मियों के जरिए भी उनके अंदर मुख्तलिफ हुनर पैदा करना आपका खासा रहा है। मौसूफ 1993 में जूनियर कॉलेज में बतौर लेक्चरर, 2019 में जूनियर कॉलेज के इंचार्ज और 2021 से हेड मास्टर की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ऐ मौलिम खुश मिजाज, हम जानते हैं कि हेड मास्टर बनने के बाद आपने गोया अपनी जिंदगी स्कूल के लिए वक्फ कर दी। असातिज़ा के मसाइल को हल करने के लिए मुसलसल नासिक का चक्कर लगाना, कोर्ट कचहरी से आने वाले हर लेटर का मुदल्लल जवाब देना, हत्ता के दुश्मनान इल्म फन जो असातिज़ा के ताल्लुक से माहिती लगाया करते थे उनका भी जवाब अपनी जानिब से देना आपके ऐसे कारनामे हैं जिन्हें असातिज़ा शायद कभी भुला सके। ऐ गमखार मौलिमीन और मौलिमात, आपने हमेशा स्टाफ को टेंशन फ्री तदरीस का दर्स दिया, तदरीस को एंजॉय करते हुए गुजारने का मशवरा दिया, असातिज़ा को हर काम अपनी मर्जी और अपने तौर से करने की पूरी आज़ादी दी। आपका ये अमल यकीनन आने वालों के लिए मशअल राह साबित होगा। तालिबान इल्म में अखलाकी औसाफ पैदा करना आपकी शदीद ख्वाहिश, हर तालिब इल्म को अच्छे नंबरात से कामयाब देखना आपका मिशन, उन्हें ऊंचे मकाम पर फायज होता देखना आपकी तमन्ना, जरूरतमंदों को माली इमदाद करना आपका वतीरा। शायर ने कहा है कि शहर इंसानियत का
ہے تقاضا دہر فانی میں، سہل انسانیت کا ہے تقاضا دہر فانی میں، کسی کے کام آ جائے تو اپنی زندگی دے دو۔ اس شعر کے مصداق آپ ہر ضرورت مند کی ضرورتوں کو پورا کرتے رہے۔ آپ اس بات کو مانتے تھے کہ تدریس صرف کلاس روم کی چار دیواری میں نہیں ہوتی، بلکہ کلاس روم کے باہر بھی سیکھنے کے بہت سے مواقع ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ نے طلبہ و طالبات کے لیے مختلف مقابلوں کا انعقاد کیا کرتے تھے، مختلف پروگرام کو ترتیب دیا کرتے تھے، کبھی انہیں فارم ہاؤس کبھی ٹور پر لے جانے کی پیمائش بھی کیا کرتے تھے۔ غرض کہ طالبان علم کے ہمہ جہت نشو و نما کے لیے آپ کی کوشش اظہر من الشمس ہے۔ محترم ڈاکٹر احمد ایوبی سر، ہم جانتے ہیں کہ آپ اس ادارے کے تئیں فکر مند بھی، قوم کے ہمدرد بھی، محفل میں بذل سنج بھی، کام کے وقت سنجیدہ بھی، ادب کا نمائندہ بھی، علم کا شہدائی بھی، اوروں کی ترقی کا دلدادہ بھی اور انسانیت کے خیرخواہ بھی ہیں۔ محترم، آپ کی انہی خوبیوں کو دیکھ کر کے پشپیندر پشپ نے کہا تھا کہ میں کسے کہہ دوں زمانے میں تمہارے جیسا، میں کسے کہہ دوں زمانے میں تمہارے جیسا، دوسرا کوئی تو اپنا سا دکھا دو مجھ کو۔ یقیناً آپ کے جیسا دوسرا شاید ہمیں مل نہ سکے۔ آپ کی اس خوددوشی کے موقع پر ہم دعا گو ہیں کہ رب ذوالجلال آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ طویل عمر عطا کرے اور آپ کے جملہ خیر کے کاموں پر بے انتہا جزائے خیر عطا کرے، آمین۔ آج کی اس تقریب کے صدر محترم جناب ڈاکٹر اشفاق انجم صاحب، محترمہ سعادہ نعیم صاحب صدر انجمن تعلیم جموں، محترمہ شام ہند نہال احمد صاحبہ سیکریٹری انجمن تعلیم جموں، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے قابل احترام مہمان معظم، قابل احترام سامعین، میں اعجاز صاحب، میں حیران پریشان اس معنوں میں ہوں کہ سپاس نامے کی خواندگی ہو گئی، ان کے اپنے تاثرات ہو گئے، تو میرے پاس بولنے کے لیے بچا کیوں ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ مجھ کو جو ہے آج کو عظیم شخصیات کے بارے میں بولنا ہے۔ ایک ہمارے پرنسپل ڈاکٹر احمد ایوبی صاحب، دوسرے اسسٹنٹ ہیڈ ماسٹر محترم جناب الطاف فاروق صاحب۔ میں ان اشعار کے ساتھ اپنی بات شروع کروں گا کہ سونی سونی انجمن، سونی سونی انجمن ہے اور فضا خاموش ہے، کون محفل سے چلا ہے، ہر صدا خاموش ہے۔ میں آگے سب سے پہلے ہمارے اسسٹنٹ ہیڈ ماسٹر الطاف فاروق صاحب کے بارے میں اپنے ذاتی تجربات بیان کروں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے وہ پنویل میں اپنے درس و تدریس کا کام خدمات انجام دیا کرتے تھے۔ 1 فروری 1999 میں جمہور ہائی اسکول انجینئر کالج میں آپ کا تقرر ہوا۔ سن 2005 میں آپ کو اسسٹنٹ ہیڈ ماسٹر بنایا گیا۔ تب سے لے کر سبکدوش ہونے تک آپ اسی جلیل القدر عہدے پر فائز رہے۔ آپ کی شخصیت، مجھ کو جن دو حضرات کے بارے میں بولنا ہے، دونوں کی شخصیت بالکل یکساں ہے، کم سخن، کبھی بھی غصے میں نہ آنے والے۔ میں الطاف سر کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک مرتبہ وہ میرے انگلش کا جو ہے وہ لیسن آبزرویشن کیے اور غالباً میں گرامر پڑھا رہا تھا، ایکسکلمیٹری سینٹینس، تو میں نے سینٹینس لکھا تھا دس از اے گڈ بوائے۔ اب بچوں کی طرف سے سوال آیا، توجہ چاہوں گا کہ دیکھیے کہ بات کو کہتے ہیں نا کہ بات بھی کہے اور دل بھی دکھے نا۔ انہوں نے مجھ کو کتنا اچھے طریقے سے میری غلطی کی طرف اشارہ دیا تھا کہ بچوں کو یہ بتایا گیا، یہ معلوم تھا کہ واٹ سے جو ہے ایکسکلیمیٹری سینٹینس بنتا ہے، لیکن کب اور واٹ کب نہیں لگتا ہے۔ تب میں نے پہلا سینٹینس جو لکھا تھا دس از اے گڈ بوائے، تو میں نے ان کو بولا کہ دیکھیے اس میں آرٹیکل اے آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واٹ سے بنے گا۔ پورا لیکچر ہونے کے بعد انہوں نے اپنے یعنی کھڑے ہوئے
और बच्चों को बोला कि देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि आर्टिकल ए सर जो बताया है एकदम सच बताया है, लेकिन आर्टिकल ए यहां पर इस्तेमाल हुआ है नाउन बॉय के लिए। तब मेरे दिमाग में क्लिक हुआ यार ये चीज उससे आसान और बेहतर। तो ये उनका मुश्फिकाना अंदाज, जैसे वो बच्चों को तरबियत देते थे उसी तरह से असातिज़ा किराम से भी जब काम लेते थे, बिल्कुल वही तरीका, निहायत ही मुश्फिकाना रवैया, कभी गुस्से में नहीं आते, काम गलत भी हुआ समझाते थे, बताते थे। उन्हीं की इस हरकत को देखकर, उन्हीं की इस रवैये को देखकर सन 2006-7 में इंग्लिश की 8वीं की बुक चेंज हुई, तो उसमें एक सेंटेंस था प्रेमबल में कि स्टूडेंट्स एफर्ट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन देयर मिस्टेक्स। तो चौहान साहब उस वक्त एजुकेशन ऑफिसर थे, उन्होंने जब इस सेंटेंस को पढ़ा तो बेसाख्ता जब हमारा समाप्त प्रोग्राम हुआ तो मैंने वहां पर अल्ताफ फारूक सर का नाम लेकर कहा था चौहान साहब को कि हमारे यहाँ के असिस्टेंट हेडमास्टर साहब बिल्कुल यही करते हैं जो इस किताब ने बताया। किताब आ जाएगा सन 2006 में, लेकिन ये शख्स को मैं एक जमाने से ये चीज देख रहा हूं कि आप बच्चे की कोशिश को देखिए, उसकी गलतियों और खामियों के लिए, और उसको कैसे करना है विदाउट निगेटिव, बगैर निगेटिव यानी निगेटिव आंसर के उसको पॉजिटिव तरीके से बताना। मैंने उनसे ये बेइंतहा सीखा है और मैं उनको ये यकीन दिलाता हूं कि इंशाल्लाह ये चीज आपसे जो मैं सीखा हूं इसे ताहयात अपने साथ रखूंगा। और इनफैक्ट टू माय ऑल स्टूडेंट्स, अभी जो मेरे पास जितनी भी सर्विस बची है इंशाल्लाह मैं ये तमाम चीजें जो है देता रहूंगा, देता आया हूं और इंशाल्लाह देता रहूंगा। अगली शख्सियत है मोहतरम जनाब अहमद अजूबी साहब। देखिए इनसे मेरा जज्बाती लगाव इसलिए भी है कि अहमद सरों में हम एक डेस्क पर बैठे हैं, साथ में पढ़े हैं, रिजवान खान साहब है और भी बहुत सारे मेरे साथी असातिज़ा किराम सामने बैठे हुए जो हम क्लासमेट रहे हैं। इनको अल्लाह ताला ने अजीब सलाहियतों से नवाजा। कॉलेज के दिनों से हमने इनके अंदर एक जो सबसे बेहतरीन खूबी जो देखी है, न सिर्फ वो देखी है बल्कि उन्होंने उसको साबित किया है। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी ये इतनी ज्यादा है कि मैं आपको बताऊं कि जब वो हम सिटी कॉलेज में थे तो खान साहब को याद होगा कि उस वक्त तो आप जो जीएस बने थे। अहमद अजूबी सिटी कॉलेज में जब हम ज़ेरे तालीम थे तो उस वक्त तो वो सिटी कॉलेज के जीएस बने थे। ये सिलसिला यहाँ खत्म नहीं हुआ। उनकी लीडरशिप क्वालिटी ने उनको कहा कि नहीं साहब ये आपकी जगह नहीं है। वो अपनी इस क्वालिटी को मजीद बढ़ाते हुए आगे चल के वो स्कूल बोर्ड मेंबर बने। जमूर में जब आपका तकर्रुर हुआ तो असिस्टेंट टीचर के तौर पर हुआ, उसके बाद वो लेक्चरर बने। उन्होंने कभी भी लीडरशिप क्वालिटी और तालीम और ताल्लुम का ताल्लुक छोड़ा नहीं। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब उन्होंने लेक्चर बने उसके बाद आपको मैनेजमेंट ने जूनियर कॉलेज का इंचार्ज बनाया, उसके बाद आपको इसी स्कूल ने प्रिंसिपल के जलील कदर ओहदे से नवाजा। और ये उनकी काबिलियत और सलाहियत है। बहुत अप एंड डाउन से देखे, बहुत उरूज और जवाल देखे, बेइंतहा तकलीफों का सामना किया। मुझको याद आता है मेरे सामने एक मरतबा हमारे मोहतरम सुपरवाइजर एजाज रफीक सर ने उनको बेसाख्ता कह दिया था, सर आप इतनी मुश्किलात में रहते हो, आप रात में सो पाते हो क्या? लेकिन उन्होंने हौसला नहीं। आज स्टाफ मैं बोलता हूं बेइंतहा उनको जो है दुआएं देता है, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी, देखिए इतना बड़ा स्टाफ है, इतनी बड़ी स्कूल है, हर एक को साथ लेकर चलना मुमकिन नहीं है, लेकिन मैंने उनके अंदर ये खूबी देखी है कि मुझको याद नहीं आता है कि स्टाफ का कोई मेंबर शायद उनसे नाराज होगा। हालांकि इतनी बड़ी स्कूल में सबको खुश करना मुमकिन नहीं है। ये उनकी काबिलियत है, ये उनकी खुसूसियत है। कितने भी मुश्किल हालात है हमेशा मुस्कुराते हुए तमाम बातों का जवाब देना। अभी एजाज सिद्दीकी साहब ने अपने सिफातनामे में जिक्र किया माइटी का, इसका उसका, ये तो कुछ भी नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो झेल जाती है। तो आज जो स्कूल इस महज पर पहुंची है और आज स्टाफ का ये हाल है, मैं आपको बताऊं कि एकजुट हो गया, ये कायदाना सलाहियत, ये बेसाख मैं कहूं। और एक जमाने के बाद आप और हमने देखा कि स्कूल का पूरा नक्शा जो उन्होंने जैसे ही प्रिंसिपल बने नक्शा बदल दिया और पूरी स्कूल को रंग रंगत देखे उसका जो है हुलिया ही बदल दिया। तो ये उनकी बेपनाह सलाहियतें हैं जो उनको आज यहां पर रोकी हुई है।
तो मैं अपने नेक ख्वाहिशात तमाम सुबुकदोश असातिज़ा किराम के लिए देता हूँ, खुसूसन अहमद साहब के इसलिए देता हूँ क्योंकि मेरा उनका जज्बाती ताल्लुक इस मानों में है कि हम शुरू से साथ में रहे, अभी भी साथ में रहते हैं। और मेरे इन्हें ख्वाहिशात तमाम असातिज़ा किराम के लिए कि अल्लाह ताला इनको आने वाली जिंदगी भी जो है लंबी और सेहत वाली दे, और इनके औलाद को भी इन्होंने भी जो है पीछे नहीं छोड़ा। इन्होंने अपनी औलाद को भी आला तालीम से आरास्ता किया और उनको बेहतरीन यानी जेवर तालीम से आरास्ता करके आज अपने अपने घर पर वो इत्मीनान से, सुकून से, इज्जत की जिंदगी गुजार है। मैं दोनों साहबान के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन्हें बेपनाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए और इनके आने वाली जिंदगी को बेइंतहा आसान फरमाए। शुक्रिया। तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानान और रिटायरमेंट लेकर स्कूल से अपना तालीमी सफर खत्म करने वाले प्रिंसिपल साहब, अल्ताफ फारूक साहब और दिगर दो हज़रात, असल में तालीमी सफर बड़ा मुश्किल सफर था ये लोगों का। खुसूसी तौर पर प्रिंसिपल साहब हमारी जो मुश्किलें थी, हमारे जो मसाइल थे, उस पर उन्होंने बड़ी खंदा पेशानी से उसको हल किया और हमारे साथ बस बलक से नफीस हाजिर रहे। हर बात पर जो दुख दर्द तकलीफें इज़्ज़तें आई हालात ने दी, उसमें उन्होंने अपने आप को भी संभाला, अंजुमन तालीम जमहूर को भी संभाला और एक अच्छा मैसेज दिया। मैं वक्त की नज़ाकत को देखते हुए बहुत सारी बातें जो कहना चाहती थी वो इतनी लंबी हो गई कि आप कह नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं इनसे उम्मीद करूंगी जो लोग आज हमसे जुदा हो रहे हैं, कहा जाता है कि आपके हम बेटे को शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले, तो वो वक्त मत आने देना। तुम्हारे तजुर्बात का, तुम्हारे एहसास नजरियात का और इस अंजुमन को दिए गए वक्त और उसके साथ हालात के साथ समझौता करके इस स्कूल को चलाने के लिए तुमने जो खिदमत दी है, जो वक्त दिया, जो तकलीफें सही है, उसके लिए मैं हजरात की बहुत शुक्रगुजार हूँ, अपने स्टाफ की शुक्रगुजार हूँ, खवातीन और देश जो हमारे टीचर असतिज़ा हैं उनकी भी शुक्रगुजार हूँ। जनाब प्राइमरी की हमारे एक रिटायर्ड टीचर को मैं हमेशा फातिमा को देखती हूँ, यहाँ मौजूद रहती है, हर प्रोग्राम में मौजूद रहती है, यहाँ रहती है। ऐसा नहीं है मेरे घर के हर दुख दर्द में भी शरीक रहती है, ऐसे तो सभी शरीक रहते हैं। वो रिटायर हो गई है इसलिए उसको जब देखती हूँ तो मुझे याद आता है कि उसका ताल्लुक जिस तरह स्कूल से बना रहा। मैं निहायत नाम आपको से दुख के साथ अपने साथियों को अलविदा कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इनका तजुर्बा हमेशा स्कूल के फायदे के लिए, स्कूल की तरक्की के लिए हर वक्त साथ रहेगा। शुक्रिया। मोहतरम डॉक्टर इशफाक अंजुम साहब, सदर अंजुमन के अरकान, दोस्त हो रहे अहमद सर और उसके साथ दीगर अफराद, स्टाफ मेंबर्स, खवातीन हज़रात, कई पहलू हैं मैं इस पर बोल सकता हूँ। पहले तो मैं मालूम था हूँ कि हज़रात के ताल्लुक से बहुत ज़्यादा मेरा रास्ता नहीं रहा है, इसलिए मैं उस ताल्लुक से नहीं बोल पाऊँगा। अहमद सर के साथ मेरा रास्ता काफ़ी पुराना है, तालीमी सरगर्मी के ताल्लुक से यहाँ पर उनके हवाले से गुफ्तगू हो गई, लेकिन कुछ सरगर्मियाँ, दीगर सरगर्मियाँ भी हैं उसके बारे में थोड़ा मुख्तसर में बोलकर मैं इजाज़त चाहूँगा। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शायद वाले कि आप बड़े फाल होकर रहे हैं और जब भी अंजुमन ने सर को याद किया है, पैसिव लिसनर बनकर नहीं रहे, एक्टिव मेंबर बन गए।
कोई भी जिम्मेदारी दी गई है आगे बढ़कर भी उन्होंने जिम्मेदारी को संभाला है और उस काम में जुट गए, अच्छे ढंग से उसको पूरा किया। ये खूबी उनके अंदर बदलते खत्म हो गई। अंजुमन उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करती है, सेहत और खैर आफियत के लिए दुआ करती है और उम्मीद है कि अंजुमन से जो रास्ता आता है उस रास्ते को आप हमेशा हमेशा बनाए रखेंगे। दूसरी एक बात जो है इस ताल्लुक से मेरा ताल्लुक रहा है मुझे कि मैं सिटी कॉलेज से मुंसलिक रहा और वहाँ पर सर जो थे स्टूडेंट की हैसियत से हम लोगों को दरमियान रहे। वहाँ पर भी मैंने उनको निहायत एक पाया, बहुत मुतारिफ। ये अहमद सर के मिजाज की बात है, मामला को वो कभी बहुत लाइटली नहीं लेते, हल्के में नहीं लेते, करते हैं तो उसकी जान से कर सकते हैं। अल्लाह ने एक जबरदस्त खूबी उनको ये अता की है और मुझे पूरा यकीन है कि उनकी ये जो सरगर्मी है अदब से मुताबिक, तालीम से मुताबिक और मामलात से मुताबिक, ये उनकी जो सरगर्मियाँ हैं वो इंशाअल्लाह आइंदे भी जारी रहेगी। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला अहमद सर को और उनके साथ जो जोश में अल्लाह इन तमाम औलाद को खैर वाक़े से रखे, ईमान पर खात्मा का फरमाए और अपने मुस्तक़बिल को इस ढंग से गुजारे कि बाद में आने वालों को मुस्तक़बिल को भी संभाल सके। शुक्रिया। प्रोग्राम के सदर मुहतरम साहब, मोहतरमा साहिबा मैडम साहबा, साहिबान एजाज और अजीज सामईन, अस्सलाम वालेकुम। वक्त बहुत कम है। अल्ताफ सर से मेरा ताल्लुक रहा है वक्तन फौकन। जयपुर में जब भी आता हूँ बड़े संसा पेशानी से हमेशा उन्होंने इस्तेमाल किया है और बड़ी अच्छी वजीराई की है, अच्छे दोस्त के जैसा हमेशा रहे हैं। इस मकाम मुसम्मा है और मुबारकबाद देता हूँ कि सर बड़ी बाइज्जत तरीके से आप रिटायर हुए, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इलियास भाई के मैं लेबर अटेंडेंट में देख रहा हूँ, पहला मौका है कि पूरा डिपार्टमेंट रिटायर होगा। ये सब रिटायर हो रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। मैं आपको इलियास सर तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, बहुत अच्छा आपने किया है। रह गया अहमद सर, तो अपने घर के ताल्लुक से और अपने भाई के ताल्लुक से कुछ कहना ये तो दूसरों से सुनना ज्यादा अच्छा है। पूछते हैं वो कि अहमद कौन है, पूछते हैं वो कि अहमद कौन है, कोई बताओ कि हम बतलाएंगे। बहरहाल मैं बता दूं कि मेरे भाई हैं और नाम भी हम दोनों का हम पास किया है और एक ही मनसब से हम लोग रिटायर हुए। जब वो हेडमास्टर की पोस्ट उनको मिली तो मशवरे के लिए जब बैठे थे तो मैंने उनसे एक ही बात कही थी कि आप लोग को तनकीद से फुर्सत नहीं, आप लोग को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर हर काम की बुनियाद रख। अब उन्होंने उस बुनियाद का कितना पालन किया मैंने पेशरों को करने में सुना तो बहुत अच्छा लगा मुझको। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। असल में हेडमास्टर बड़ी इज्जत की बात होती है, लेकिन चिराग की रोशनी सबको नजर आती है, लेकिन इसके नीचे जो अंधेरा होता है वो चिराग ही जानता है, उस पर किसी की नजर नहीं जाती। कभी किसी का तजस्सुस, कभी खुद अपनी तलाश, कभी किसी का तजस्सुस, कभी खुद अपनी तलाश। अजीब दिल है, हमेशा सफर में रहता है। तलब करें ये अंधेरे की रोशनी हमसे। मेरी मुराद डॉक्टर अशफाक अंजुम साहब से कि वो आए और अपना सदारती खुतबा पेश करें। खुतबा पेश करने तो कुछ ऐसे लगेंगे, मैं सिर्फ चंद बातें कहूँगा। पहले तो ये कि जो लोग रिटायर हुए, ये एक ऐसा शोबा है तालीम का कि दीगर मुलाजमतों से लोग सुबुरदोश हो जाते हैं तो उसके बाद वो सारा काम खत्म हो जाता है। लेकिन अगर मुदर्रिस सुबुरदोश होता है तो खाली सर्विस से खत्म होता है उसका रिश्ता, लेकिन उसकी जो तदरीसी खिदमत है वो उसके ऊपर लाजिम रहती है और ये उसकी जिम्मेदारी है कि सुबुरदोशी के बाद भी वो अपने घर में, अपने इतराफ में बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करे और ये उसकी जिम्मेदारी जो है आखिर तक उसके ऊपर आया रहेगी। दूसरा ये कि एक बात मैंने महसूस की यहाँ पर कि अहमद अयूबी साहब ने बहुत कुछ किया, बहुत आपने सुना भी, लेकिन मैं
बहुत अरसे से मैं भी और आप भी सुनता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत याद होता है। और मैंने आपने देखा होगा कि जैसे ही अहमद अयूबी साहब को इधर लिफाफा मिला इस उधर दाखिल खजाना होता। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हुजूर खर्ची ना करते हुए उन्होंने बहुत सवाल रखा है अयूबी साहब को। मैं मुबारकबाद देता हूँ सबों को और आइंदा के लिए उम्मीद रखता हूँ कि जो सुबह साथ वो अपनी जिम्मेदारी नहीं भूलेंगे और समाज में अपनी तदरीसी खिदमत जारी रखेंगे। शुक्रिया। सबसे पहले मैं सावान इजाज को आगे तकलीफ पेश करते हुए इस महफिल के सदर अंजुमन डॉक्टर अशफाक अंजुम साहब का शुक्रिया अदा करते हुए सदर की अंजुमन तालीम जमहूर और स्टाफ जम्मू स्कूल एंड जूनियर कॉलेज टीचिंग उन्होंने टीचिंग मेहमाना के मुअज्जम हमारे मुअज्जिन शहर और वॉलंटियर हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया।